Good morning, dear children. I hope you all are fine. And class today we will start application of derivative. It is today's topic, and we have learned derivative of different types of function: exponential function, logarithm function, composite function, right? And function u to the power v, and so on. In this topic, we will learn how do we apply of derivative on any quantity, on any function, on to find the equation of tangent and normal. Okay? Application of derivative, as the name suggests you, is that this is the application of how do we apply of derivative on any quantity, and there are 5 things are there that we will study. So here first, here it will initiate with the first topic, rate of change of quantity. You know what is dy by dx? Dy by dx is the slope of tangent. Slope of tangent for a function y is equal fx. Clear? It is dy by dx. So how can we use that slope of tangent to finding some other quantities? That thing we will learn here. One thing also you have seen in the MVT, mean value theorem, and Rowley's theorem. That thing also you have, what is that? That was some type of you saw there. It is the use of derivative, right? There were some 3 conditions are there. Function should be continuous and so on. Whatever was there. So that was the use of Rowley's, and the next theorem is MVT, right? Mean value theorem. Here also in this chapter, we will learn uses. What is the application, right? Means from the slope of tangent for any function at some point, what other quantities we can evaluate, we can find from this from dy by dx. Okay. So here the first topic is rate of change of quantities. Means there are 2 quantities, right? So we will compare. We will find the rate. How the y changes with respect to x. For example, acceleration. It is rate of change of velocity is acceleration. So how the velocity is changing with time? It is rate of change of velocity, right? One is velocity. This whole thing you have learned, and you have studied in the class 11 starting. In physics also you have learned. So one is the v, velocity, it is ds upon dt. Rate of change of displacement. Rate of change of displacement is called velocity, right? It is rate of change of, means how the displacement is changing with time. It is velocity. So with all respect, we will learn some other quantity with respect to some other quantity. Means, for example, if a circle, so we will learn how the area is changing with respect to change in radius, right? Also we can find what is the rate of change of area, what is the rate of change of circumference. So this all quantity we can find out. These are the first topic. Today's topic, firstly we will learn, the first point is rate of change of quantity. Some other 4 quantity also in that one, this will also become. Next is increasing and decreasing function. Meaning is that also we can find by dy by dx how the whether the function is increasing or it is going up or it is going down. There's some decline. So also we can find by the dy by dx. Next is to find the tangent, to find the equation of tangent and normal on any function at any point. At the point is x naught, y naught, right? Next is the approximation. How can we determine the approximation of any quantity? And finally, it means the main. It's one more lengthy topic is compared to other 4 topics. The last one is maxima and minima, right? If, for example, you take one function y is equal fx, what is the, if you draw this function on a graph, so you'll find if there are some turning points in that function, so there would be some largest point there would be some smallest point, right? So whether that function is turning point or not, and how many turning points are there. Turning means on that point where the function is
turning. For example, the function is going up and it's come and it is starting coming down from that point. If the function is going down, it starts coming up. So these are called the turning points. All we will study in detail in this topic, right? So it is maximum and minimum value on that point, right? Some other quantity we will study in this topic. So this is the topic of application of derivative, right? So here, firstly, by the first topic is rate of change of quantity. That we will start today. One example also I'm taking. Actually, it's a very in the beginning of derivative when you were to study that topic. So with dy by dx, so it's a simple thing. Dy by dx means rate of change of y with respect to f. It is called differentiating of y with respect to x. It is dy by dx. However, what the changing of y में क्या change आ रहा है with respect to x? As if you changing the x, what the change is coming in y? It is dy by dx. Simple thing, right? So it is you already know that it is dy by dx. Rate of change of y with respect to change in x. It is dy by dx. So that all we will study here. One example also I am taking how it is very simple topic. This is very simple topic. Just only you have to evaluate the value. There are some simple concepts are there, right? Concepts are there. And one thing also is emerged out from this topic. Actually, firstly we must aware by dy by dx. Dy by dx is slope of tangent. It is everyone. I hope everyone would be clear that what is dy by dx. It is simple thing. It is slope of tangent. So you see ki from the slope of tangent, how the function is related from the slope and what quantity can evaluate from this quantity. तो आपने एक फंक्शन लिया, आपने एक पॉइंट पर at any point you draw one tangent, right? ये भी फिगर है. But another figure is, for example, you draw this function and it is the tangent. अब देखते हैं दोनों tangent का इसमें दोनों की मीनिंग क्या है. यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है. दैट इज m. स्लोप इज पॉजिटिव. इसका स्लोप जो है स्लोप इज पॉजिटिव, राइट? एंड इस केस में क्या है? स्लोप इज नेगेटिव, राइट? स्लोप इज नेगेटिव. फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव है. ठीक है. अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज, ये तो अदर मीनिंग्स हो गया. इसके बाद आप अगर इससे हम रिलेट करेंगे इन टॉपिक्स को, तो हमारा आज जो टॉपिक है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. सो इन दैट टॉपिक आप देखेंगे अगर dy by dx की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विद इंक्रीज ऑफ x y इज आल्सो इंक्रीजेस. इट इज dy by dx. क्लियर? और अगर dy by dx अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, सो व्हाट डज इट मीन? द मीनिंग इज दैट x increases then y is decreasing. ठीक है. x बढ़ाने के साथ, या दोनों ये इनवर्स रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है ना? इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव. ठीक है. इसका हम लोग यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में. कुछ पैरामीटर के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको डिफरेंट केसेस में, उसमें हम लोग उसको यूज करेंगे. क्लियर? एक यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं क्लास. क्वेश्चन लेकर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ठीक, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है that is a question also. The main thing what you have to learn in that types of problem. ठीक है ना? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आएंगे, इसको आप लोग लर्न करेंगे. इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे. ओके गाइस, the first question of exercise from NCERT, exercise 6.1. ठीक है. तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. एरिया का किस रेट से वो चेंज हो रहा है, किस रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. देखिए, रेडियस चेंज होगी, इसका एरिया चेंज होगा. आपको ये फाइंड करना है. मतलब कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है तो उसका रेडियस भी चेंज हो रहा है, तो इसको आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो ये आप समझ गए होंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में. तो इसमें देखिए, पहले आपको फॉर्मूला पता है. सोल्यूशन देखिए, solution is area is pi r square.
आपको फाइंड करना है dA अपॉन dr। वी हैव टू फाइंड dA अपॉन dr, राइट। अच्छा, एट r इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए हम r एक इंस्टेंट लेंगे। r इंस्टेंट क्या है, 3 सेंटीमीटर पर dA अपॉन dr क्या था, जब ये सर्किल अपने आप बड़ा हो रहा था, जब 0 से ये जा रहा था, तो अब इसमें जब 3 पर आया, जब रेडियस आपका 3 हुआ, तो रेडियस 3 पर उसका रेट क्या है, किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है, व्हेन r इज 3 सेंटीमीटर। ये इसकी मीनिंग आप समझ लीजिए। यूजुअली बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन का बेस समझ लेते, बट उनको पता नहीं होता है कि एट r का मीनिंग क्या है। एट r का मीनिंग ये है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज दैट रेडियस, ठीक है ना। क्लियर। अब यहां पर आपको dA अपॉन dr फाइंड करना है। इट इज क्या आएगा, 2 पाई r आएगा, dA अपॉन dr 2r हो जाएगा, r स्क्वायर इज 2r, पाई कांस्टेंट है, मल्टीपल हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है एट r इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो dA अपॉन dr इज 2 पाई एंड 3 मींस 6 पाई। अब इसका यूनिट आप कैसे लिखेंगे, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस एक लेंथ है, इट इज ऑल सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर यूनिट दिया सेंटीमीटर में, तो यहां पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। मींस अब इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आंसर, आंसर का मीनिंग क्या होगा, आंसर का मीनिंग ये होगा कि 1 सेंटीमीटर रेडियस को इंक्रीज करने पर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चेंज हो रहा है, मींस बढ़ रहा है। अच्छा, चेंज हो रहा नहीं बोलेंगे, इंक्रीज बोलेंगे, बिकॉज़ यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कम हो रहा है, तो वहां पर नेगेटिव आप आ जाएगा। नेगेटिव मींस एरिया कम हो रहा है, कोई वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव है तो एरिया बढ़ रहा है, वहां पर कोई वो जो वाई क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर रही है। सो दिस इज द आंसर, ओके। सो note down and try the second problem from NCERT textbook, class 12 part 1. Class second problem, the volume of cube is increasing, अब increasing है तो is at the rate of 8 centimeter cube per second, 1 second में एक क्यूब का एरिया इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अगर यहाँ पर डिक्रीजिंग होता क्लास, जैसे कि कोई एक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा होता, तो यहाँ पर मैं लेता जब हम इसमें dv by dt लिखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वो dv by dt is plus 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यों, रीजन ये है कि ये इंक्रीज कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे, अगर डिक्रीज हो तो यहाँ पर ले लेते हैं आप माइनस, क्लियर। अच्छा, ये अब आप समझ लीजिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था जस्ट बिफोर, कि dy by dx पॉजिटिव क्या होगा, dy by dx नेगेटिव, तो मीनिंग क्या है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना, हाउ फास्ट, मींस टाइम आ गया, हाउ फास्ट the surface area, that is S, increasing when the length of that cube is 12 centimeter, means आपको फाइंड करना है, we have to find, पहले आप एग्जाम में पहले आप मेंशन कर लीजिए क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला मेंशन कर दिया, आपको फाइंड करना है ds by dt, आपको फाइंड आउट करना है at x is equal 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन, दिस इज टू बी फाइंड ds upon dt, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होता है, x क्यूब होता है, एंड सरफेस एरिया क्या होगा, 6x स्क्वायर होगा। फिर स्टार्ट कैसे करेंगे, अब आप पहले v को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। क्लास है आपको, आपने स्टडी किया होगा अभी कि आप अगर t के रिस्पेक्ट में इसको आप चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, v इज x क्यूब, अगर आप dv by dt आपने t के रिस्पेक्ट इसको चेंज किया, इसको भी देखिए डिफरेंशिएट तो नॉर्मल होगा, ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जिनको नहीं आ रहा है, जिन्हें हो सकता हो भी कंफ्यूजन हुआ हो, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल थिंग। इसको t के रिस्पेक्ट में करना तो आप क्या करेंगे, इट इज 3x स्क्वायर, क्लियर, एंड dx by dt, इट इज why is this so, because it is changing with respect to t। हम उसको x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम उसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपने यहाँ के लिए आपने यहाँ पर t ले लिया, ठीक है ना। फंक्शन x में था, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dv by dt 3x स्क्वायर dx by dt। इसको और मोर क्लियरली, मोर इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है क्लास। आप ऊपर अर्थ में देख लीजिए इसको, अगर फॉर एग्जांपल अब v इक्वल टू x क्यूब है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, जस्ट ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग यू इफ यू हैव प्रॉब्लम इन t, राइट, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। आप इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप कैसे करेंगे,
dv by dx इट इज 3x स्क्वायर। क्लियर? आप x को ऊपर ले जाइए तो dv by dt यहां पर आ जाएगा, 3x स्क्वायर यहां पर आ गया, डिवाइड में था मल्टीपल में आ गया, dt यहां पर आ गया, dt यहां पर आ गया, सिंपल। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, स्टूडेंट आई एम स्पेलिंग। क्या मतलब प्रॉब्लम, इट इज dy by dt is 3x square dx by dt। ठीक है, dy by dt कितना है 8। हम यहां से क्या फाइंड करेंगे, हम यहां से फाइंड कर लेंगे dx by dt। क्लियर? x क्या है, x आप ले लेंगे 12 सेंटीमीटर। तो अब इसको आप करेंगे यहां पर 8 3 12 स्क्वायर dx by dt, हम यहां से फाइंड आउट कर लें, dx by dt is 3 upon 144 into 3। ये dx by dt है, x क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगा, x क्या है, क्यूब की लेंथ है ना, ये आपका क्यूब है, क्यूब की साइड x है, तो साइड होगी सेंटीमीटर में, तो आपका ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब इसको आप यूज करेंगे यहां पर। इसके बाद क्लास यहां पर देखिए, इट इज s 6x स्क्वायर, चेंज करें आप t में आप डिफरेंशिएट करिए, ds बाय dt इट इज 12x dx बाय dt। क्लियर? अब यहां पर आप वैल्यू प्लेस करेंगे, ds बाय dt 12x, x कितना लेंगे आप 12, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, when x is equal to 12 सेंटीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, dx बाय dt की वैल्यू है, इसको आप यहां पर प्लेस करेंगे 8 upon 144 into 3। ठीक है, 12 12 144 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ रही है 8 upon 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है और t की यूनिट आपकी सेकेंड है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? नॉट अ बिग थिंग क्लास, इज वेरी सिंपल थिंग। Let's now see third problem है, a stone is dropped into a quiet lake and the wave moves in circle at the speed of 5 centimeter per second. This is the speed at which the circles waves are moving. तो ये क्या होगा, what is the ये कौन सी क्वांटिटी होगी, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीनिंग इज दैट कि वो इस जो वेव्स मूव कर रही है उसका रेडियस होगा, कि उस इस रेडियस से स्पीड से वेव मूव हो रही है। मीनिंग इज दैट कि जो आपका dr बाय dt होगा वो आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल। At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, एक मैंने इंस्टेंट ले लिया, r is equal 8 centimeter। How fast is the enclosed area increasing? जो वेव मूव कर रही है ऑब्वियसली इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो आपको फाइंड करना है dA by dt at r is equal 8 centimeter। This is the question class, right? This question also we will done here, we will solve here simply as same as question number 2, right? First take a formula a by r square, okay, by chain rule or by you differentiate this whole this equation by with respect to t, it is dA by dt, right? It is 2 pi r dr by dt, okay? dr by dt is given, it is 5 centimeter per second, यहाँ पर आ जाएगा, r is 8 यहाँ पर आ जाएगा, इवन वन लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया ये, r is 8 centimeter, dr by dt is 5, it is 10 and 8 80 pi। क्लियर? अब ये क्या है, dA by dt है, ये क्या है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, t क्या है टाइम सेकंड, तो आप यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है ना, आप समझ लें, ये आपकी वेव्स हैं, ये आपकी इंक्रीज हो रही हैं, तो मैंने एक इंस्टेंट ले लिया, मैंने ये ले लिया मैंने कि r आपका 8 है। अब इस इंस्टेंट पर एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है इस यहाँ पर वेट में, ये आपको इवैल्यूएट करना था। सो दिस इज द आंसर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Class fourth problem, length of one rectangle is decreasing, length decrease कर रही है with rate 5 centimeter per 1 minute में 5 centimeter
लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। Whereas width we represent from y is increasing, the width is increasing, breadth is increasing with the rate of 4 centimeter per minute, right? In 1 minute it is increasing by 4 centimeter per minute. Okay, when x is equal to 8 centimeter, when y is equal to 6 centimeter, when y is equal to 6 centimeter, we have to find the rate of change of perimeter, means dp by dt आपको फाइंड करना है, and da by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, तो हमको जो चीजें फाइंड करना है वो हम यहाँ पर लिस्ट कर लें। फर्स्ट इज dp by dt, p is the perimeter we have to find, and next is second part में da by dt आपको फाइंड करना है। ओके, और when x is 8 and y is 6। ठीक है, ये आप जो चीजें गिवन है आप उन्हें आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रेट लेंथ मींस x, आप x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर आपका होगा dx by dt is -5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है क्लास, there should not be any confusion। and the next is dy by dt, it is breadth is increasing, it is rate of 4 centimeter per minute। okay, it is increasing। क्लास ये दो चीजें हो गई। अब इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड करेंगे dp by dt एंड da by dt हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला p is 2 perimeter is 2x plus y। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, dp by dt 2 मल्टीपल है, x आप होगा बेटा dx by dt and it is dy by dt। clear? Now put the value just only and we can evaluate the answer। it is 2, dx by dt is -5, dy by dt is 4। okay, -1 into 2 -2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए पैरामीटर है, पैरामीटर वन डायमेंशन है, तो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या मीनिंग होगा, मीनिंग ये होगा -2, तो इसको आप आंसर लिखेंगे rate of change of perimeter is 2 it is decreasing, right? Rate of change of perimeter is decreasing with rate of -2 centimeter per minute, right? means 2 centimeter per minute से perimeter क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको यहां पर लिखेंगे the rate of 2 centimeter per minute perimeter with the rate of perimeter is decreasing। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, और आप यहां लिखेंगे डिक्रीजिंग क्योंकि यहां पर आंसर आ रहा है -2। क्लियर? so this is the first answer। second also you also can find out। अब आपको da by dt फाइंड करना है, you note down this solution and next is dx by dt आप कैसे करेंगे, write the formula for area। area is ax into y, perimeter of area of rectangle x into y। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट आप यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर आप जब आप इसको t के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट आप x आप ऐसे ले लें, x आपका y आ जाएगा, y आपका होगा dy by dt क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको y आ जाएगा, इट इज dx by dt। क्लियर? वेरी सिंपल थिंग। इसके बाद अब इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे और जहां पर x और y आ रहा है वहां पर x और y की वैल्यू प्लेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा x is 8। ओके, dy by dt dx by dt is -5, dy by dt is 4। ठीक है, यूनिट्स मैंने नहीं लिखी, यूनिट्स आप वहां देख सकते हैं सेंटीमीटर पर यूनिट। तो dy by dt is 4 plus y is 6, dx by dt is -5।
इवैल्यूएट करिए 32 and 30, 32 and 30, आंसर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो रहा है इन 1 मिनट, ठीक है। तो फाइनल आंसर कि with the rate of 2 centimeter square per unit, the area of rectangle is increasing. या कुछ भी आप लैंग्वेज डिस्कस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इस आंसर है एरिया इंक्रीज कर रहा है, पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है क्लास, ठीक है। रेट आपका मैंने मेंशन कर दिया। क्लास ये क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा है। इसमें देखा मैंने, इसमें क्या है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व y is equal 6y is equal x cube plus 2। ये एक आपका कर्व है, इस कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। आपको पॉइंट्स फाइंड द पॉइंट्स, राइट, इट इज मोर देन 2 या मोर देन 1, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व एट व्हिच कंडीशन क्या मैंने, ये आपकी एक रिक्वायर्ड कंडीशन है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट मींस dy by dt और dx by dt, राइट, एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। बस इस कंडीशन के हम यूज करके इसको पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो जो मैंने लाइन आपको जो कंडीशन मैंने लाइन अप करी है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा dy by dt, dy by dt means y coordinate is changing as fast as the x coordinate, 8 टाइम्स आ रहा है 8 dx by dt। क्लास ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। dy by dt is equal to x times, so 8 times of dx by dt। आपको पॉइंट फाइंड करना है। आपने फंक्शन लिया है, फंक्शन है आपका 6y is equal x cube plus 2। आप इस फंक्शन को आप इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। इट इज 6 dy by dt 3x square dx by dt एंड 2 आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर आप वैल्यू प्लेस करेंगे dy by dt की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहां से वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 into 8 dy by dt 3x square dx by dt। फिर dx आएगा यहां पर dx by dt, dx by dt कैंसिल आउट, यहां से आप x फाइंड करिए। आपका 3x square is 48, x square is 16, implying that x is plus minus 4। बस x कोऑर्डिनेट आ गए, x कोऑर्डिनेट is equal to plus minus 4, right। अब इसके हेल्प से हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट जो होगा x is coming plus minus 4। अब आप x को यूज करके आप फाइंड करेंगे y है आपका 6, इक्वेशन है 6y x cube plus 2, ओके। आप यहाँ x 4 फाइंड करेंगे, फिर -4 फाइंड करेंगे, इससे आपको y फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। when x is plus 4, 6 into y 4 of cube plus 2, 4 of cube 64, तो 6y 64 plus 2, y is 66 plus 6, it is 33 by 2, oh sorry 22 by 2, 6y y is coming 11, सो 11 आ रहा है, ठीक है ना। y 11 आ गया। पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट्स आपको हो गया 4,11, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 4,11। नाउ फाइंड नेक्स्ट, दूसरा हम फाइंड करेंगे -4 से वैल्यू आ जाएगा when x is equal -4, 6y is equal -4 of cube plus 24, 6y -64 plus 2 -62, it is 6y, y is -62 by 6, ओके। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे 31 by 3, ओके। y is coming 31 by 3, पॉइंट्स क्या गए -4 and -31 by 3, this is the second point, right। these are the two answer, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, right। these are the two answer, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका 4,11 रिक्वायर्ड आंसर,
नोट डाउन दिस वन। क्लास 6 प्रॉब्लम है, एक सैंड इज pouring फ्रॉम पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। जैसे कि सैंड जो है यहाँ से गिर रही है, एक ये आपका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक वेसल है, उस वेसल में सैंड गिर रही है और सैंड ऐसे जो है वो एक हीप बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो सैंड गिर रही है इसका जो रेट है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड सैंड फॉल हो रही है इस वेसल, क्लियर। अच्छा, इसके बाद इसमें नेक्स्ट आप देखें और कंडीशन क्या गिवन है, आप इसका नोट कर लीजिए जो गिवन है आपको, मींस dv by dt is 12 centimeter cube per second. One thing. Second, the falling of sand from the cone on the ground in such a way that height of cone is always 1/6 of radius. Means ये जो इसका हाइट है, तो यहाँ तो फिगर नहीं बना, जो हाइट है 1/6 है रेडियस का, मीनिंग इज दैट इससे क्या मिला, इसका मिला आपको h is r/6, ओके। यहां से आपको ये दो कंडीशन आपको मिल गई। अब थर्ड पॉइंट क्या है, क्या फाइंड करना है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन h is 4। मींस आपको जो फाइंड है वो है आपका dh by dt फाइंड आउट करना है व्हेन x is equal या एट h is 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सिंपली आप पहले v का फॉर्मूला यूज करें 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके। देखिए आपको dh by dt फाइंड करना है, गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन को यहां से r रिप्लेस कर लें, r आपका हो जाएगा 6h, r है 6h हो जाएगा, तो यहां से आप रेडियस को इवैल्यूएट कर लें, आप v is 1/3 पाई, क्लास को इवैल्यूएट करके आपको भी आ रहा है 12 पाई h क्यूब, सिंपल इवैल्यूएशन है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं फास्ट कर रहा हूं, ये आपका हो जाएगा 12 पाई 3h स्क्वायर dh by dt। आपको dh by dt फाइंड कर, dy by dt आप कितना है, 12 है, 12 पाई 3h आपका कितना है, h is 4 स्क्वायर dh by dt, राइट। अब यहां से जो dh by dt की वैल्यू होगी वो होगी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके क्लास, दिस इज द आंसर।